हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, religions development. This is the most important religions development here. There is a topic here imbalance and there are socio-economical disparities in India. This is the most important imbalances and there is socio-economical disparities in India. We have discussed about that the effort made for the social-economical development in India has been to aim at the holistic development of all the religions of the country. In fact, one of the major objectives of development planning initiated immediately after independence has been to be reductions of religion disparities by the promoting the development of all the regions. The planning and implementation process has focused on approach of regional and development. But one of the critical problems facing here India has economic as the sharp and growing regional variation among different states and union territory. This is important here. There is regional variation among two different states and union territory here. There are content differences which are already created by nature. For example, you may find in the figures below that figures and some area has a plant topographs and fertile alluvial soil and abundance of water like a Indo-Ganga plant. Whereas there are content an area which have a hilly terrains, dense forest cover and the less fertile soil like a northern eastern part of country. And this difference is created by the nature is called regional diversities here. This is important. This difference is created our natures are that is called regional diversity. But there are contain difference that are human made and this difference are inequalities are related to be indicators like a pre-capital income. And agriculture growing industrial growth, expansion of transport and communication of facility, literacy and status of their health. The status of health is also important and this human made a difference or inequality between two regions and known as the disparities. Disparities is important here. The human made difference and inequality between two regions and known as the disparities here. You maybe understand disparities in the better way when you observe figure and it is these are disparities that are causing a concern. Let us analyze and try to understand the disparities in the respect of the following here. First of all, here there is a picture here, diversity. Diversity is the most important here. Our surrounding the natural resources here, diversities. And on your screen, there is the most important natural resource here. And the next picture is the most important here, is the disparities here. This is upper as a picture is here, diversity. But lower here is important here, disparities. Disparity is the most important, urbanizations, village and there is a farming. There's a most important picture on your screen here. And the next picture here, there is agriculture and there is a dust this area here. This is a disparities here. This is important here. There is a disparities in India. This is the most important things here. The first of all here, per capita income. The per capita income is the census of the level of economical activity in the region. There are very wide regional and disparities per capita income. For the year 2005 to 6, national average of per capita income was rupees 25,760. There is a most important there are whereas only 7 states which have a per capita income higher than the national average. The bottom 7 poorest states that had to per capita incomes below their national average are Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Jharkhand and Chhattisgarh. There is a below their national average. There are Bihar and Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Jharkhand and Chhattisgarh. And these states are the home
to be more than half of Indian as a population. This is important here. The state are home to be more than half of Indian population. The next year, poverty. A state view of poverty ratio has witnessed a decline over to the year. Though the poverty has a decline at the macro level, rural, urban, and the interstate disparities are continuing. The poverty ratio is still level is high in Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh. The poverty rate in the urban Orissa is 43%, and the rural Bihar at 40% are some of the worst in the world. On the other hand, the rural Haryana is 5.7% here, and the rural Punjab 2.4. The compare well even at the global level with the some of the middle income countries here. But next year, industrial growth. The initially distribution of the industry in India was determined by the historical process of growing dry to the primary by the interest of the British rulers. As a result, most of the industries were concentrated at the few center, and this pattern has a continuity in the post-independence period as well. Well, that all the attempt made so far to expand the process of industrialization of various reasons. There is the most important here industrial growth here. And the next year, agriculture growth. Regional disparities is agricultural growth have increasing over the year with the state of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh pushing well ahead of the others. And the per capita average food grain productions has been to the highest in the Punjab and the lowest in the Kerala. This is the most important here. The per capita average food grain production has been to their highest in the Punjab and the lowest in the Kerala. Mizoram and Maharashtra are their lowest level in the respect of irrigated area. A state like Punjab and Haryana achieve a high rate of agriculture productivity because of having extensive irrigation facility and intensive use of fertilizer. In a majority of the state, agriculture growth is yet to be pick up their needed pace and come up to be their potential. This is important here. And the next year, literacy here. It is one of the major indicator of socio-economical development, but there are great disparities in the respect in the various regions. According to Census 2001, the literacy rate is the highest in the Kerala and the lowest in the Bihar. It's important. 2001 literacy rate here highest in the Kerala and lowest in the Bihar. This is the most important for the competition view. Whereas the all Indian average of literacy rate was 65.38%. It was a 90.92% of Kerala and the only 47% in a Bihar. And there is significance of variation among the rest of the state also. And this is important here. The next year, transport and communication. Transport and communication in the India are of the various types. The common forms of transportation are roadways, railways, airways, and waterways. When you look at their data in respect of the even one of these, and you may be appreciate their prevalence or disparities. For example, in the respect of the road length, there are some states and that are at a very advanced level, where there is a some in the which their road situation is a very poor. With regard to total road length per 100 kilometer, Kerala is the top the list, whereas the state of Jammu and Kashmir is at the bottom. This is the most important here. The Kerala is the top list and the state of Jammu and Kashmir is the bottom level. The next year, cases of regional disparities here. This is the most important cases of the regional disparities here. Whenever we try to identify the reasons for a regional imbalance in the various regions, we tend to think that population growth, literacy, and the lack of basic infrastructures are responsible for the underdevelopment of content states. But if we analyze this reason further, we find that this factor is not only the reasons are underdeveloped in the backward state, but also it is an outcome. It's important. For example, there has been to
unabated of population growth and prevalence of illiteracy and the lack of basic infrastructures in many underdeveloped states. Primarily because there is socio-economic development has not taken place in the way it was taken place in the other forward states. It is therefore interesting to analyze the following major cases of regional disparities here. It's important the major cases of the regional disparities here. The next historical perspective is important here. During the colonial rules in the pre-independent era, the area which were not important for a commercial and political angle receive a little attention and they remain under development. You know that there is important pre-independent era and this era not important for the commercially political angle receive a little attention and remain under development. And those areas still continue to be ignored by their interference. And the most prominent is among such as area are the tribal area of central and northern eastern India. And geographical factor like here, topographs of regions can be constrained at the development. The desert region Rajasthan and difficult hill terrains of northern eastern regions are examples such of case. These important geographical factors here. And the next here, unequal distribution and variation is used for natural resource. This is important point here. Unequal distributions and variation in the use of natural resources here. As you may be aware, natural resources like coal, iron, ores, oil, natural gas and other are not available in all the states. But this ability is alone has not ensured the development of such states. There are content states that have made a good use of this privilege, but other like Bihar, Jharkhand and Odisha have not been to the able to do so. This is an important point here. There are content state has been made to the good use of this privilege, but other like Bihar, Jharkhand and Odisha have not been able to do so. And the next year, remote area from national market. The remote area from national markets here. The distance of regions for there is a national markets has also affected the development of economic in those area, especially the northern eastern region, and making it difficult to be alert their growth process. The next year, lack of basic infrastructure. The state that has been developed infrastructure facility like a road, electricity and transportation facility have made a speedily progress in terms of social economical development. You know that there is an important the state that are developing infrastructure facility like a road, electricity and transportation facility has made to the speedily progress in terms of social economical development. The state that lack these facility find it difficult to the equatorials is utilize their allocated investment and also to be attract private investor. This is the most important here, attract to the private investor here. The next here, poor governance. The most important factor that influences socio-economical development is the quality of governance. You may be observed that a state that has to move forward has been to make a spell of good governance for most of the periods. On the other hand, almost all of the backward states are those that has not been to able to develop in basic infrastructure, has been struggling with a law and order problem and have not been to able to make a optimum utilization of the national resource regulated by the planning commission. It's important. They have not been able to make optimum utilization of national resources localized by the planning commission. The poor governance has also been discouraging the private investor to set up industries or pressure any other productivity and activity in those states. This is the most important point here, poor governance. Poor governance is the most important factor. There is not growth equality of governance here.
विकास एक ऐसा शब्द है जिसमें देखा जाए तो सब जो है विकास करने के अंतर्गत ही ये कार्यरत होते हैं। चाहे देश विकास करे, चाहे राज्य विकास करे, चाहे व्यक्ति विकास करे। विकास एक ऐसा शब्द है जो हर कोई अपनाना चाहता है, लेकिन विकास की उस सीमा तक वही पहुंच पाता है जिसके पास कहते मेहनत का जो है परिश्रम का क्षमता हो। कहते मेहनत और परिश्रम भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है विकास की उस चोटी पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है क्षेत्रीय विकास, यानी क्षेत्रीय विकास किस प्रकार हो सकता है और इसमें सरकार का और नागरिकों का क्या दायित्व है और ये कैसे हो पाएगी, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू। देखा जाए तो क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत असंतुलन और भारत में सामाजिक आर्थिक असमानताएं सबसे बड़ी जो है बाधाएं बन सकती है। जो असंतुलन है और सामाजिक आर्थिक विकास की जो असमानताएं हैं वो काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जो है सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना है। देखिए कहते हैं अगर देश विकास होगा तब राज्य विकास हो जाएगा और पूरा लोग विकसित हो जाएंगे। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर, और इसके लिए जो है भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का होना काफ़ी सुनिश्चित करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पश्चात नियोजित आर्थिक विकास अपनाने का एक प्रमुख कारण था कि देश में व्याप्त क्षेत्रीय समानताओं को दूर कर सभी क्षेत्रों का जो है समुचित विकास किया जाए। विकास की नीतियों में भी क्षेत्रीय विकास उपायों का प्रयोग किया गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी परेशानी ये रही कि यहाँ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कहते हैं यही विभिन्नता है जो देश की अखंडता और प्रभुता को जो है नष्ट करती है, क्योंकि ऐसा जो विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में कुछ विभिन्नता तो प्राकृतिक है, जैसे कि आप नीचे दिए गए चित्र से भी समझ सकते हो, और कुछ क्षेत्रों का जो है धरातल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है, जैसे सिंधु गंगा का मैदान। जबकि कुछ भूमि ऐसी भी है जहाँ पर्वत, पहाड़ी और घने जंगल हैं तथा वहाँ पर ज़मीन भी कम उपजाऊ है। प्राकृतिक द्वारा की गई इस विभिन्नताओं को क्षेत्रीय विविधता कहा जाता है। यानी देखिए प्राकृतिक भी कई तरह की विभिन्नताओं को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हो कहीं बरसात अधिक होती है, कहीं कम होती है, कहीं सूखा के चपेट में है तो कहीं बाढ़ आ चुकी है। तो ये विभिन्नताएं हमें दर्शाती है कि प्राकृतिक में भी बहुत काफ़ी विविधता नज़र आ सकती है, लेकिन कुछ विभिन्नता ऐसी है जो मनुष्यकृत है, यानी मानव के द्वारा लाई गई विभिन्नता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, कृषि और औद्योगिक विकास, परिवहन संचार के साधनों का विस्तार आदि। तो ये मनुष्य द्वारा मनुष्यकृत जो है विभिन्नताएँ हैं। मनुष्यकृत इन अंतरों को असामान्य के नाम से जाना जा सकता है, यानी ये असामान्य के नाम से जाना जाता है। आप चित्र में भी देखोगे भली भांति समझने की कोशिश करोगे कि विषमताएं और असमानताओं को भी भली भांति समझ पाओगे। और ये विषमता जो है चिंता का एक बहुत बड़ी विषय है। कहते हैं अगर ये विषमताएं अगर देश से नहीं गई तो बहुत बड़ी चिंता का जो है विषय बन सकता है। आइए अब विभिन्न संदर्भ में विषमताओं का विश्लेषण करें और समझने का प्रयास करें चित्रों के अंतर्गत कि चित्रों में किस बात की तरफ इन चीज़ों को इशारा किया जा रहा है। अब देखिए आपके समक्ष जो चित्र प्रस्तुत हुआ है वो विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। अब विषमता क्या होगी? विविधता तो आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधे, जंगल, ये सारे जो है विविधता के अंतर्गत आते हैं, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, ये विविधता आती है। लेकिन विषमता क्या है, चलिए देखते हैं चित्रों के अंतर्गत। यहाँ पर चित्र आप भली भांति समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है विषमताएं दिखाई जा रही है। पहला चित्र जो है आपको ऊँट खड़ा होगा तो कहीं हद तक ग्रामीण क्षेत्र को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नज़र घुमाओगे तो ये शहरीकरण में कन्वर्ट हो चुका है, जो विषमताएं काफ़ी है गांव से शहर की तरफ। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर को देख सकते हो
जहाँ बैलगाड़ी से, बैलों से जो है एग्रीकल्चर की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है ट्रैक्टरों के से कृषि की जा रही है। तो इतनी विषमताएँ जो है हमें आ चुकी है, जिसका आप भली भांति यहाँ पर अध्ययन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अब इस चित्र को भी आप भली भांति समझ सकते हो। यहाँ पर किसान खड़ा है और उसके चारों तरफ जो है सूखी ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर जो है गेहूं की खेती को लहराते हुए दिखाया गया है, उसके दाने को दिखाया गया है। तो ये विषमताएँ इस बात को दर्शाती है कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी विषमताएँ हैं जिसको प्रॉब्लमों को जानना जरूरी भी है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, भारत में विषमताएँ। आखिर भारत में किस प्रकार की विषमताओं से भारत जूझ रहा है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है और इसका जो है किस प्रकार सलूशन की जा सकती है। तो सभी बातों पे हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय आर्थिक क्रियाओं का आधारशिला होता है। यानी प्रति व्यक्ति आय किसी भी क्षेत्र के लिए आर्थिक क्रियाओं का आधारशिला होता है। हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अधिक क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती हैं। यानी हमारे देश में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अधिक विषमताएं पाई जाती है। राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 25,000 रुपया है। ये जो है राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 25,000 है और ऐसे केवल 11 राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले स्तर पर जो राज्य हैं वो बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड व छत्तीसगढ़। इन राज्यों में भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी क्षेत्र में अधिक है प्रति व्यक्ति आय और किसी क्षेत्र में जो है बहुत ही कम है। तो ये काफ़ी विषमताएं देखने को हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी विषमताएं हैं गरीबी। गरीबी एक ऐसी विषमता है जो कि बहुत ही दुखदायक स्थिति को पैदा कर सकता है। राज्य वार गरीबी के अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में कमी जरूर आई है। देखा जाए तो गरीबी में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन गरीबी इतना अधिक कम नहीं हुई है जिसे संतोष के लायक समझा जा सके। भारत में व्यापक से वृहद स्तर पर गरीबी में कमी आई है, लेकिन ग्रामीण और शहरी तथा राज्यों के बीच विषमताएं व्याप्त हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है और यहाँ पर गोरख धंधा भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं लोग भी उन्हीं की होती है, सरकार भी उन्हीं की होती है और इनका गरीबी रेखा कार्ड भी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। और इसमें गरीबी रेखा कार्ड बनाने में पारदर्शिता नहीं होती है, बिल्कुल नज़र नहीं आती है और इसका आप स्वयं ही अनुभव करके बता सकते हो, क्योंकि इन क्षेत्रों में अमीर लोग भी गरीबी रेखा कार्ड बनवा रखे हैं और गरीब तो बना रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण उड़ीसा और बिहार में क्रमशः 43 और 40% लोग गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। आप समझ सकते हो 40 से 43% सिर्फ बिहार उड़ीसा में, तो एक बहुत काफ़ी दयनीय स्थिति को प्रेजेंट कर रहा है कि आधे से अधिक जनसंख्या जो है बिहार और उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, गरीबी रेखा से भी नीचे, जो कि दुनिया में सबसे खराब स्थिति में से एक है। जब भारत की दुर्दशा ऐसी होगी तो भारत कैसे विकसित हो सकता है? जब भारत में उड़ीसा और बिहार जैसे देश जो कि गरीबी रेखा सबसे नीचे स्तर पर है, इतनी खराब, दुनिया की सबसे खराब स्थिति भारत कहते भारत में बिहार और उड़ीसा का ही है, यानी दुनिया में सबसे खराब स्थिति। क्यों यहाँ पर ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं है, यहाँ के लोग अपनी मनमानी चलाते हैं, यहाँ का प्रशासन अपनी चलाती है। तो इन्हीं कारणों से जो है ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार होने के पश्चात भी यहाँ पर जो है शासन सही से नहीं चलाई जा रही है। दूसरी तरफ ग्रामीण हरियाणा और पंजाब में क्रमशः 5 से 7% है। आप समझ सकते हो 5 से 7% हरियाणा में है और पंजाब में 2 से 4% लोग जो है गरीब हैं।
जो कि वैश्विक और कई मध्य आर्थिक सतर्क देशों से बेहतर है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब में इसकी बेहतर स्थिति को दर्शाया गया है। बाकी सभी राज्यों में कुछ न कुछ तौर पे जो है बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औद्योगिक वृद्धि। देखिए, भारत में आरंभिक औद्योगिकरण ब्रिटिश भारतीय सरकार के हितों के अनुरूप एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया और इसी का परिणाम था कि ज़्यादातर उद्योग कृषि स्थानों में केंद्रित थे। यानी ज़्यादातर उद्योग जो थे कृषि से केंद्रित थे और भारत तो आपको पता ही है कि कृषि प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी काफ़ी हद तक यही स्थिति बनी रही, जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कृषि में वृद्धि। देखिए, कृषि में वृद्धि भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो है विषमता बढ़ी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस मामलों में अन्य सभी राज्यों से आगे निकल गए हैं। यानी कृषि में वृद्धि जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ही प्रमुख रखा गया है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर है। यानी पंजाब में सबसे अधिक उत्पादन की जाती है, जबकि केरला निम्न स्तर पर है। केरला में जो उत्पादन बहुत ही कम की जाती है, जबकि यहाँ पर साक्षरता दर जो है उच्च कोटि की है। शहरी क्षेत्र के मामलों में मिजोरम और महाराष्ट्र सबसे नीचे स्तर पर आ गई है और पंजाब और हरियाणा ने सिंचाई सुविधाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन को उच्च स्तर पर बढ़ाया है। और भारत के ज़्यादातर राज्यों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि उनकी क्षमता से बहुत ही कम है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्षमता है, लेकिन वहाँ पर जो है कृषि उस क्षमता से नहीं हो पा रही है और यह तीव्र करने की आवश्यकता है और थोड़ा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साक्षरता। कहते हैं साक्षरता सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। साक्षरता का मतलब होता है जो व्यक्ति पढ़ लिख समझ सके वो साक्षर होते हैं। लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर भारी विषमताएं पाई जाती है। कहते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक एवं बिहार में सबसे कम थी। अब देखा जाए तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक थी और बिहार में सबसे कम थी, जबकि उसी मैदान से पूरे भारत में औसत साक्षरता दर जो थी 65% थी। केरल में 90.93% थी और बिहार में 47% थी। अब यहाँ पर बात ये प्रश्न उठता है, जब बिहार और यूपी में बहुत ही साक्षरता दर कम है तो आखिर यहाँ से अधिक लोग जो हैं IPS IAS में सिलेक्शन होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जब साक्षरता दर 47% है यूपी बिहार में और देखा जाए तो यहीं से ही बहुत सारे IPS जो निकलते हैं, अफसर सब निकल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या एग्ज़ाम में पारदर्शिता की कमी है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। जब बिहार यूपी में इतने समझदार व्यक्ति सब रह रहे हैं तो वहाँ पर साक्षरता दर इतनी कम कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और कई लोगों के मुंह से तो मैंने सुना है कि बिहार यूपी से ही मैक्सिमम जो है IPS IAS अफसर निकल रहे हैं। तो कैसी बात है, क्या कारण है? ये बहुत बड़ी विषमता यहाँ नज़र आ रही है। देश के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में भारी विभिन्नता देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवहन और संचार। देखिए, परिवहन और संचार काफ़ी महत्वपूर्ण साधन होते हैं जिससे कोई भी राज्य को जो है तरक्की हो सकती है। भारत में परिवहन और संचार कई प्रकार के हैं। परिवहन के विभिन्न साधन जैसे सड़क, रेलवे, हवाई तथा जल परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण परिवहन के साधन हैं। यदि आप परिवहन के किसी भी एक साधन के विषय में आंकड़े एकत्र करें तो आपको ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के फैलाव में व्याप्त विषमताओं का बोध जरूर हो जाएगा, क्योंकि इनके क्षेत्र कितने हैं और कितना क्षेत्र में ये अपनी इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि सड़क परिवहन की बात करें तो देश के कुल राज्यों में तो सड़क धातु और सड़कों की स्थिति बड़ी ही अच्छी है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इसकी स्थिति दयनीय है। कहते हैं प्रति 100 किलोमीटर रोड की लंबाई में केरल प्रथम स्थान पर है, जबकि जम्मू कश्मीर में निचले स्थान पर आ जाता है। तो देखा जाए तो आज रोडों की स्थिति जो है बड़े बड़े शहरों में थोड़ा ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रोडों की सड़कें देखें तो उस कंडीशन का नहीं है जैसा होना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्षेत्रीय विषमताओं के कारण।
देखिए, क्षेत्रीय विषमताओं के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों के बीच असंतुलन और विषमता की बात करते हैं तो कई बार हम यह सोच लेते हैं कि किसी क्षेत्र या राज्य विषय में पिछड़ेपन का कारण जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और जो आधारभूत संरचना की कमी तो नहीं है। यानी किसी भी राज्य के पिछड़ेपन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और आधारभूत संरचना की कमी। कहते हैं आज लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका कार्य ऐसा होता है जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा हो। तो ये बहुत बड़ी विषमता है, इसलिए ये विषमता काफ़ी नज़र आ रही है। लेकिन जब हम इन कारणों का आगे विशेष विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये केवल पिछड़ेपन या अल्पविश्वास के कारण मात्र नहीं है, बल्कि इनके परिणाम भी हैं। यानी देखा जाए तो कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं तो कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। पिछड़े राज्यों में अशिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के अभाव में अग्रणी राज्यों की तुलना में बड़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है और इसका मुख्य कारण इन राज्यों में अग्रणी राज्यों की तरह का सामाजिक आर्थिक विकास न हो पाना था। इसलिए क्षेत्रीय विषमताओं के नीचे दिए गए कारणों का विश्लेषण करना काफ़ी रोचक होगा और इससे हमें पता लगेगा कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से वृद्धि किस लिए हो रहा है और जो राज्य शिक्षित है उसमें आखिर क्या विषमताएँ हैं। सबसे पहला कारण तो यही बनता है ऐतिहासिक परिच्छेद। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो राज्य और क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा लाभकारी नहीं थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया और वो पिछड़े रह गए। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं वो पिछड़ने लग जाता है। उद्योगपतियों के और व्यवसायियों ने भी इन पिछड़े क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया और ये बहुत उदार परिस्थिति है कि उद्योगपतियों ने और व्यवसायियों ने पिछड़े क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया। जनरल सी बात है, आज उसी की चलती है जो सब पढ़ी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसके पास धन है और जिनके पास सुविधाएं हैं। लेकिन उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने भी इन क्षेत्रों को जो है नज़रअंदाज किया। ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख हैं मध्य और जो है उत्तर पूर्वी राज्य के आदिवासी इलाके जो आज तक पिछड़े हुए हैं। उसके पश्चात आता है भौगोलिक कारक। किसी क्षेत्र का आधार भी उसके विकास में बाधक हो सकता है। कहते हैं धरातल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और किसी क्षेत्र का धरातल भी उसके विकास में बाधक हो सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान का रेगिस्तान और उत्तर पूर्वी राज्य का पहाड़ी पर्वतीय सराय धरातल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये क्षेत्र रेगिस्तानी है और दूसरा क्षेत्र जो उत्तर पूर्वी राज्य पहाड़ी हैं और पर्वतें हैं, तो इनके धरातल बहुत ही विषम है। इसलिए यहाँ पर जो है भौगोलिक कारक भी बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग में विभिन्नता। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक साधनों के वितरण और उपयोग में विभिन्नता। आपको जानकारी होगी कि प्राकृतिक साधन जैसे कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केवल प्राकृतिक साधनों की जो उपलब्धता मात्र विकास को सुनिश्चित नहीं किए करती। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केवल प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता मात्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती है। कुछ राज्यों ने अपने साधनों का सही ढंग से उपयोग किया है, जबकि अन्य जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि ऐसे करने में सफल रहे हैं। जनरल सी बात है, जो संसाधनों का उपयोग भली भांति करेंगे वो विकसित होंगे और जो संसाधनों की सही प्रयोग नहीं करेंगे वो विनाश के कगार पर खड़े हो जाएंगे। उसके पश्चात आता है देश के मुख्य वाणिज्यिक केंद्र से दूरी। किसी क्षेत्र के देश के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों अथवा मुख्य शहर बाजारों से दूर भी इसको आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई जो है आप रोजगार लगाते हो, कोई आप फैक्ट्री खोलते हो, लेकिन वो शहरों से काफ़ी दूर है, तो आपको शहर में पहुंचाने में बहुत धन लग जाएगा और ये मुख्य कारण भी बन जाता है। उसके पश्चात है आधारभूत संरचना की कमी। देखिए, जब तक कहते हैं ना आधार मजबूत ना हो तब तक जो है पेड़ खड़ी रह नहीं सकती। जिन राज्यों ने आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, परिवहन सुविधाओं का विकास कर लिया है वो तीव्र आर्थिक विकास करने में सफल भी रहे हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो लोगों की प्राथमिकता है ये कि संरचना, सड़कें, बिजली, परिवहन सुविधाओं का विकास ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिन राज्यों
में ये आधारभूत सुविधाएं नहीं है, वो आवंटित धनराशि का उपयोग तथा निवेश को आकर्षित करने में सफल रही हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर है आधारभूत संरचना की कमी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सुशासन की कमी। देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो ये प्रभावित करता है, सुशासन। सामाजिक आर्थिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है जो है शासन प्रशासन की गुणवत्ता। कहते हैं आप जैसा शासक चुनिएगा वो वैसा ही समाज को चलाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि सुशासन की कमी। जिन राज्यों की तीव्र गति से प्रगति की है वहाँ अधिक समय तक सुशासन रहा है। जो भी राज्य पिछड़े हुए हैं उनमें जो है लगातार कानूनी और व्यवस्था की समस्या रही है, और ये देखने को भी मिला है और हम जानते भी हैं, और ये आधारभूत संरचना बनाने में असफल रहे हैं। यही कारण रहा है कि योजना आयोग द्वारा इन राज्यों को भी आर्थिक सहायता दी गई है और इसका भी प्रयोग नहीं कर पाए हैं। यानी जो आर्थिक सहायता दी गई है इन्होंने इसका उपयोग जो सुचारू रूप से नहीं किया है। बात घुमा फिरा कर वहीं आ जाता है करप्शन के ऊपर। कारण क्या बनता है? करप्शन। इस वजह से इन राज्यों में जो है विकास की जो है पटरी पे नहीं चल पाती है। सुशासन कमी के कारण इन राज्यों में निवेश भी नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण ये राज्य जो है पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सुशासन है और सबसे बड़ा करप्शन है, जिनके कारण इन राज्यों का विकास होना सुनिश्चित नहीं हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाठी स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, और आप 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए जो अग्रसर वीडियो है उससे अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।